شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، جنوبی پنجاب میں ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کی بہار آنے کو تیار۔ ویسٹ انڈیز ٹیم کا دورہ پاکستان، ویسٹ انڈیز اور پاکستان ٹیسٹ میچز ملتان منتقل کرنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے ٹیسٹ میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق پہلا میچ کراچی اور دوسرا ملتان میں کھیلا جانا تھا، تاہم کراچی اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے ٹیسٹ سیریز کا انعقاد وہاں ممکن نہیں۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم جنوری کے پہلے ہفتے اسلام آباد پہنچے گی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم چند روز پریکٹس سیشن کرے گی۔ شاہینز اور ویسٹ انڈیز ٹیم کے درمیان پریکٹس میچ بھی کھیلے جانے کا امکان ہے۔ جنوری کے دوسرے ہفتے میں مہمان ٹیم ملتان جائے گی۔ دونوں ٹیسٹ میچز کے شیڈول میں رد و بدل کا بھی امکان ہے۔ ملتان میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداران کی پریس کانفرنس۔ صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر کامران سعید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میڈیکل پروفیشن کی عزت و توقیر ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ ڈائلسس یونٹ پر حکومتی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت ڈاکٹروں کو معطل کر کے اپنے فیصلے تھوپ رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیکل پروفیشن کی عزت و توقیر ہمارا بنیادی تقاضا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کے اندر کام کرتے ہیں، یہ ان کی سبارڈینیشن میں ہے، یہ ان کے نمائندے کے طور پہ یہاں ان کی عزت اور وقار اور تکریم بڑھانے کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، اور وہ کچھ سرکاری قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جو سرکاری ملازمین اپنی پرفارمنس کے لیے پابند ہوتے ہیں کہ ان کے تحت کام کریں۔ اس میں جو اگر کہیں کسی سٹیج پہ سروس کے دوران ایسا انسیڈنس آ جائے تو چیف منسٹر از ایکچولی دی فائنل اتھارٹی، دی اپیل اتھارٹی۔ ہمارے اس کیس میں اپیل اتھارٹی نے ہی آ کے ہی ہمیں ریپرامائنڈ کیا، ہمیں چارج شیٹ کیا اور موقع پہ سرسری سزا سنا کے ان لوگوں کو معطل کر دیا۔ میں نہیں سمجھتا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی ایک بہانے کے بائے اپنی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں ہمارے پیشے کی، ہمارے وہاں پروفیشنل لوگوں کی توہین کرے، تضحیق کرے۔ میں آج پریزیڈنٹ پی ایم اے سینٹر صرف اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں یہاں سے حکومت وقت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت 2 سال 3 سال پتہ نہیں کتنے عرصہ چلتی ہے، یہ ادارہ پچھلے 60-65 سال سے اس علاقے کی خدمت انجام دے رہا ہے، یہاں کے لوگوں کا فخر ہے۔ ہم جیسے ناچیزوں کو اس نے ایک شناخت دی ہے، ہم نسٹیرین ہیں، ہم گریجویٹس ہیں، یہاں کے پوسٹ گریجویٹ ہیں جو گلوبلی جا کے خدمات انجام دیتے ہیں، وہاں انہوں نے اپنے ملک کا، اپنے ادارے کا نام پیدا کیا ہے۔ یہاں کی ٹریننگ اس ایک واقعے نے کوشچن کر دی ہے، اسی طرح جیسے پی اے کی تھی۔ کسی سٹیج پہ بھی یہ ہوگا کہ نشتر میں جہاں اتنی حکومت وقت کی طرف سے سرٹیفائیڈ نااہلی کی گئی ہے، وہاں کے گریجویٹس اور وہاں کی ٹریننگ کو کیوں نہ کوشچن کیا جائے۔ ہم اس دن سے پریشان ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، اس کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ آپ بائی فورس یہاں کے لوگوں کو سسپینڈ کر کے وہاں کی وائس چانسلر کو دمکا کر اس سے استعفیٰ لے لیں، صرف اپنی اس پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو اس کو سیاسی اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا بھی جانتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ان ایکشن ہے۔ سال 2024 میں ملتان پولیس کا کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے پنجاب بھر میں پہلا نمبر ہے۔ جرائم میں ملوث 294 گینگز کے 809 ارکان کو گرفتار اور 44 کروڑ سے زائد کی ریکوری کی گئی۔ ملتان پولیس کا جرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پنجاب بھر میں پہلا نمبر۔ روہی کو موصول سالانہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے دوران جرائم میں ملوث 294 گینگز کے 809 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ کل تک میری ریکوری جو تھی وہ 87 کروڑ روپے تھی، یہ شامل کر کے 94 کروڑ روپیہ یعنی 1 ارب کے قریب ہم برآمد کر کے لوگوں کو دے چکے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ٹیم ورک ہے، کانسٹیبل سے لے کے ایس ایس پی صاحب نے جو کام کیا، محنت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ رواں سال قتل کے 105، اقدام قتل کے 266، رابری مہا قتل کے 16، اندھے قتل کے 26 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف 3200 سے زائد مقدمات درج کر کے 3500 سے زائد ملزمان کو پکڑا گیا۔ سال 2024 میں 24 کلو آئس، 38 کلو ہیروئن، 1100 کلو چرس، 8 کلو افیون، 1,39,000 سے زائد لیٹر شراب پکڑی گئی۔ میری برآمدگی پچھلے سال کے بھی اس میں شامل ہیں۔
इस साल जितने नंबर चोरी हुआ उससे ज़्यादा नंबर मैं रिकवर करके लोगों को दे चुका हूँ। और जब आप रिकवरीज करते हैं, गैंग्स पकड़ते हैं, तो अगली वारदात रुक जाती है। मेरा जो इस मुल्तान का क्राइम है, अगर मोटरसाइकिल बाइक की बात करूं तो पिछले साल की निस्बत 1024 मोटरसाइकिल कम चोरी हुए हैं इस साल। सीपीओ सादिक अली का कहना था कि रवां साल जुराइम की शरह में 40% कमी हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से 44 करोड़ से ज्यादा मालियत का माल और जर बरामद करके साइलिन के हवाले किया गया। कैमरामैन डी नवाज के साथ आमिर खान, रूही, मुल्तान। मुल्तान वासा इंतजामिया की गफलत देहली गेट रोड के ताजरों का सरदर्द बन गई। 4 माह से देहली गेट रोड पर सीवरेज का गंदा पानी जमा, देहली गेट रोड के ताजरान का कारोबार मुतासिर होने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दिल्ली गेट चौक पर मौजूद हूँ। बात करते चलें तो दिल्ली गेट चौक पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। गुज़श्ता 4 माह के अरसे से जो है वो यहाँ पर ताजरों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा होने से कारोबार भी जो है वो ठप होकर रह चुके हैं, जिससे ताजिर बरादरी जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। बात करने के लिए यहाँ के ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान बताएं, किन मुश्किलात का सामना है आपको? भाईजान, ये पानी की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात है। 4 महीने हो गए हमें इस पानी को बर्दाश्त करते करते। रोज़ाना पानी आ जाता है, पीछे देखे रोज़ाना पानी खड़ा है। कारोबार जैसे सुबह आते हैं वैसे दुकानें बंद कर देते हैं। दुकानों के किराए, कारीगरों के दिहाड़ियाँ पल्ले से दे रहे हैं, घर के खर्चे पल्ले से कर रहे हैं। बहुत मुश्किलात है हमें। इंतज़ामिया को चाहिए इस पानी का मसला हल करे। ये हमें बीमारियों में भी मुब्तला कर रहे हैं। रोज़ाना पानी यहाँ खड़ा होता है, जिसकी वजह से आने जाने वाला हर शहरी परेशान है इससे। सीवरेज की पाइपलाइन ठीक की गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो मामला हल नहीं हुआ। वो भाईजान ठीक क्या करिए, उसका पैंचर लगा दिया। जो मेन मसला है उसको पूरी पाइपलाइन डालना, वो डाल ही नहीं रही। 4 महीने हो गए। अगर पूरी पाइपलाइन डालते 2 महीने के अंदर डाल के फारिग हो जाते वो। अब 4 महीने से हम इस पानी को भुगत रहे हैं। इसका कोई मसला हल करें, वो इंतजामिया वासा किस लाइन को सेट करें। पूरा दिल्ली गेट पानी से भरा हुआ है, बाजार में से पानी आ रहा है, ये पीछे से पानी आता है, इधर से पानी, ये सारा पानी पानी रहता है 24 घंटे। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पूरा दिल्ली गेट जो है वो सीवरेज के गंदे पानी से जो है वो भरा हुआ है, जिससे यहाँ के कारोबार जो है वो ठप होकर रह चुके हैं और ताजिरों को परेशानी का सामना है। बात करने के लिए और भी ताजिर मौजूद है। भाईजान बताएं, क्या सूरत हाल है इस वक्त कारोबार की? 4 महीने हो गए, बड़े जलील हुए हैं इससे। अब उसके अंदर ना, गटर के अंदर बंदा गिरा है, एक बच्ची फैमिली गिरी है। वो ढक्कन बनाना कोई नहीं आया गटर का। इतने तंग है, रेंट इतने हैं दुकानों के, नहीं भरे जा रहे। 4 माह हो गया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हम दिल्ली गेट चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर सीवरेज के पानी की वजह से जो है वो शहरियों को और जो यहाँ के ताजिर हैं उनको मुश्किलात का सामना है। 4 माह के अरसे से जो है वो यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है, जिससे जो है वो ताफुन भी फैल रहे हैं और आए रोज़ यहाँ पर हादसात का होना भी मामूल बन चुका है, क्योंकि पानी जमा होने की वजह से जो यहाँ पर खड्डे हैं वो भी दिखाई नहीं देते, जिससे जो है वो लोग गटर में और पानी में गिर जाते हैं। जो नमाजी हज़रात हैं उनका भी मुश्किलात का सामना है और यहाँ के ताजिरों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 4 महीने से जो है वो अपनी जेब से किराए भर रहे हैं और कारोबार जो है वो बिल्कुल सिफर हो चुका है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई है। मुल्तान रोड 10 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। नामुकम्मल सड़क पर हादसात मामूल बन गए। डिवाइडर्स न होने की वजह से 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रोही ने हादसे की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मुजफ्फरगढ़ शहर के कई मंसूबे कई साल से नामुकम्मल हैं। इनमें से एक मुल्तान रोड का मंसूबा है, जिसका तामीराती काम मुकम्मल ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान रोड को कुशादा करने का काम 10 साल पहले शुरू किया गया था, मगर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। शहरी कहते हैं, पहले दुकानदारों को अदायगी का मसला रहा, अब दुकानदारों को अदायगी के बाद भी काम नहीं हो रहा। सड़क पर डिवाइडर ना होने की वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। ये मंसूबा 10 साल से ज्यादा से इल्तवा का शिकार है। हमने मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया को ये गुजारिश की है कि इसको मुकम्मल किया जाए और इस पर आए रोज कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। हमारा अभी हुकूमत पंजाब से वजीर आला पंजाब मरियम से, जिन्होंने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि कोई भी पंजाब में सड़कें टूटी हुई नहीं रहेंगी, मेहरबानी करके इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ताजिरों का कहना था कि इंतजामिया ने दुकानों को चंद फुट पीछे करने की हिदायत की थी। हमने इस पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। तमाम दुकानदारों को अदायगी भी हो चुकी, मगर ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ दिया है। स्कूल की छुट्टी के वक्त इस सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। शहरियों और दुकानदारों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड की कुशादगी का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ भी सख्त किस्म का एक्शन लिया जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।
और नाज़रीन, रोही बना तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों की आवाज। रोही के मुसलसल आवाज उठाने पर SHO थाना तरंडा मोहम्मद पनाह मंजूर अहमद मुतहरिक हैं। बाजार से तजावुजात का खात्मा करवा दिया। शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और बाजार को क्लियर रखने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए। बाजार कशादा होने पर शहरी खुश हैं। रोही की आवाज उठाने पर तरंडा मोहम्मद पनाह बाजार से तजावजात का खात्मा। रोही ने अवामी मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुंचाए तो SHO थाना तरंडा मोहम्मद पनाह मलिक मंजूर अहमद रेग भी हरकत में आ गए और शहर की मसरूफ तरीन सड़क मेन बाजार रोड से तजावजात का खात्मा करवा दिया। मेन बाजार रोड को क्लियर रखने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए। सड़क पर अरसादारा से ताजरों और रेडी बानों का कब्जा था। बाजार से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका था। खवातीन और तालिबात को अजियत का सामना था। SHO साहब दे बड़े मशहूर हैं, मतलब खालिद साहब दे ये इमरान भाई दे जिन्हें दी ड्यूटी है, इन्हें सड़क बहुत कुशादा करा देते हैं। रेड़े को एक पासे हटा देते ने, अब कोई मसला का नहीं। ऐसा गुलाब SHO साहब दे बहुत मशहूर हैं, उन्होंने सड़क क्लियर करा दी है। बहुत ही पुराना और दरीना मसला था जो मलिक मंजूर अहमद रेग SHO तरंडा मोहम्मद पनाह ने हल कर दिया और रेडी बानू की वजह से यहाँ पे राह गुजर नहीं गुजर सकते थे। तरंडा और रोही चैनल का भी शुक्रिया। शहरियों का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हम SHO और रोही न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी काविशों से देरीना मसला हल हुआ। सड़क क्लियर होने से बाजार की रौनक बहाल हो गई है। मशहूर है SHO थाना तरंडा पनाह के, जिनकी काविशों से जो दरीना तरंडा पनाह का मसला था, जहाँ पे कॉलेज भी है और बॉयज स्कूल भी है, बच्चियाँ गुजरती थी, बहुत मुश्किलात आती थी। मुसलसल रोही की आवाज़ उठाने पे SHO साहब ने नोटिस लिया है और हम बेहद मशहूर हैं रोही के। नाजायज़ तजावज़ात जो आगे पड़ी हुई थी, रेडी बानों का जो मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह SHO तरंडा मोहम्मद पनाह की बेहतरीन काविशों से ये मुमकिन हुआ है कि शहर माशाल्लाह अब काफ़ी खुला हो चुका है। इसके अलावा शहर में जो बच्चियों के स्कूल की बच्चियाँ थी, जो ताजरान के मसाइल थे, ग्राहकों के मसाइल थे, वो हल हो गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने कहा कि हम आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और उन्हें दरपेश मसाइल हल करने के लिए हम वक्त कोशां हैं। हमें जो हुक्म मिला था SHO साहब की तरफ से कि बाजार से जो बच्चियां वगैरह स्कूल से घर जाती है, उनको जाने में बहुत ही तकलीफ वगैरह होती है, इनकी वजह से हमारी ड्यूटी इधर लगी है। आप देख सकते हैं हमने शहर वगैरह बाजार ये क्लियर कराया हुआ है। उसके बावजूद हमने बच्चियाँ जब स्कूल से जब घर जाती है, बिल्कुल सही सलामत और रास्ते सफा होने की वजह से बिल्कुल कोई उनको परेशानी वगैरह नहीं होती। शहरियों ने अवामी मसाइल उजागर करने में रोही के किरदार को सराहा और बाजार कुशादा होने पर खुशी का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। मुबारकपुर में सरकारी ठेकेदार की मुबैना नाअहली चकनूरंग में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर फारूकाबाद रोड पर हादसात में इजाफा हो गया है। सड़क के बीच खड़ा दरख्त राहगीरों के लिए वबाले जान बन गया। मुबारकपुर में फारूकाबाद नौशहरा जदीद रोड के दरमियान खड़ा दरख्त हादसात का सबब बनने लगा। ठेकेदार की मुबैना नाअहली या महकमा जंगलात की गफलत के बाइस सड़क के बीच खड़ा दरख्त नहीं हटाया जा सका। पिछले साल भी एक्सीडेंट थे, काफी जना जाना चिलिया गया। इस साल भी एक्सीडेंट थे, काफी जना एक्सीडेंट थे। माड़ा जिया लड़ा जिया खड़े थिया गार्ड ब्लॉक को आखे से भी पटाया वने। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को अपील है, DC साहब को अपील है, जनाब दरख्त जना जाना की थी वेंदे। काफी एक्सीडेंट थे, मेहरबानी फरमाई वने एक पटाया वने जना फौरी तो महकमा जंगलात को आख दे। इलाका मकीन कहते हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से सड़क तामीर की गई, मगर दरमियान से दरख्त नहीं हटाया गया। सड़क पर दरख्त की मौजूदगी से ठेकेदार हाईवे की अहलियत पर सवालिया निशान लग गया। दरख्त की वजह से कई बार हादसात हो चुके हैं, मगर दरख्त को निकालकर सड़क को क्लियर नहीं किया गया। इन वास्ते महकमा इतना रोड बड़ा ने तो तवज्जो नहीं देंगे। वो आदन साडा क्या मतलब रोड बनावनी बाकी एक्सीडेंट थी तुसां जो थोड़े इलाके वाले जान, थोड़े अफीसर जान, या थोड़े जिम्मेदार जानन। इलाका मकीनों और राहगीरों ने दरख्त को हटाकर सड़क क्लियर करने की अपील कर दी। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही। मुल्तान में महंगाई की शरह कम ना हो सकी। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद में नाकाम रही है। मार्केट में फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होती रहीं। सरकारी निर्खनामे में अदरक 370 और लहसुन 600 रुपए किलो है। मार्केट में अदरक 500 रुपए, लहसुन 800 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। मुल्तान में महंगाई की शरह कम न हो सकी। सरकारी और मार्केट नरखों में खुला तजाद रहा। सरकारी नरखों में सब्ज मिर्च 80, प्याज 118 और टमाटर 106 रुपए किलो मुकर्रर। शिमला मिर्च 220, बंद गोभी 160 और बैंगन 110 रुपए, मटर 240, करेला 260, भिंडी 230 रुपए किलो में फरोख्त हुई।
पालक 100, शलजम और मूली 70, जबकि सब्ज धनिया 120 रुपए किलो में दस्तयाब रहा। पपीता 550, सेब 300, अनार 400 से 600 रुपए किलो फरोख्त, अमरूद 100, संघाड़ा 140, शकरी 80 रुपए फी किलो फरोख्त, खजूर 500, शकरकंदी 160, जबकि केले 100 रुपए दर्जन में फरोख्त हुए। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद और महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ बिलाल यूनस, रोही, मुल्तान। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में ब्रिटेन ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। तालिब इल्मों को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कमिश्नर लैंड रेवेन्यू जाहिदा बतूल और सेक्रेटरी सर्विस साउथ पंजाब अमजद शुएब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को सराहने के लिए ब्रिटेन ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस ने मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात सजाई। तकरीब में वालिदैन और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। What is the success in life? Two factors I would like to highlight for you all as a lesson learned today. One thing is perseverance, and second thing is to be compassionate. To be compassionate with all, you will say you will all the way be successful in life. इवेंट में तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड से नवाजा गया। तालीमी मैदान में तरक्की के लिए रहनुमाई भी दी गई। तकरीब की सदारत चेयरमैन ब्रिटेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल जावेद इकबाल ने की। कमिश्नर लैंड एंड रेवेन्यू जाहिदा बतूल ने असातिज़ा के लिए 1.5 लाख के इनाम का ऐलान भी किया। All I have observed today was dedication, passion and hard work. Smart work may give you some timely success in life, but hard work pays you for a long way. मैंने आज टीचर्स की इतनी मेहनत देखी है, इसके लिए मैं अप्रिशिएट भी ज़रूर करूँगी एंड आई अनाउंस 150,000 रुपीज़ गिफ्ट to the teachers of Al Kareem campus. इस मौके पे सेक्रेटरी सर्विस साउथ पंजाब का कहना था कि मुझे खुशी है कि स्कूल ऐसी तकारीब मुनक्किद करते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई से इनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर में क्रिसमस की पुरमसीही फैमिलीज का खुशियां मनाने का प्लान। मजेदार पकवान बनाने की तैयारियां जारी हैं। बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर इबादत और पिकनिक पर भी ले जाया गया। इस्लाम तमाम अक़लियतों के हकूक का ख्याल रखने का हुक्म देता है। हुकूमत समेत हम सब को मसीही भाइयों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। बहावलपुर में क्रिसमस तैयारियों पर मसीही फैमिलीज ने रोही को बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। हमारे एडवेंट संडे स्टार्ट हो जाते हैं, 4 संडेज होते हैं, तो उसमें हम सारी प्रिपरेशन नहीं होती है क्रिसमस की। तो फिर 25 को सेलिब्रेशंस होती हैं, 24 की मास होती है। ये बेसिक हिस्सा होता है हमारे क्रिसमस। हुकूमत की तरफ से हर साल हमें भरपूर सिक्योरिटी दी जाती है, और ना सिर्फ क्रिसमस के दिनों पर बल्कि सारा साल ही सिक्योरिटी के इंतजाम DPO DC कमिश्नर की तरफ से किए जाते हैं। और जितने भी हमारे जो हैं सियासी रहनुमा हैं वो भी केक सेरेमनी के लिए गिरजाघर में आते हैं और उनका भरपूर तावन हमारे साथ रहता है। इस हवाले से मसीही फैमिलीज की सेंट डोमेनिक चर्च भी आमद हुई। फैमिलीज ने कहा क्रिसमस पर मजेदार रवायती पकवान बनाए जाएंगे। बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर इबादत और पिकनिक मनाने भी जाया जाएगा और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी मांगेंगे। हम लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्रीज बनाते हैं, लोगों के घर में जाते हैं, एक दूसरी फैमिली को ग्रीट करने के लिए जाते हैं और इस तरीके से हम सेलिब्रेशन करते हैं। बच्चे हमारे हैं वो अपने नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, इस तरीके से कच्ची सेलिब्रेशन हो जाती है। क्रिसमस जो है ये मसीह खुदावंद की विलादत का दिन है और यसु मसीह पर हमारा ईमान है। उसी के वसीले से हम मसीही हैं और 25 दिसंबर को उनकी विलादत हुई थी और हम उसकी याद में ये दिन मनाते हैं। सेंट डोमेनिक चर्च के फादर अजहर लाल का कहना था कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इसलिए खुशी मनाते हैं। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वीकेंड पर मुल्तान के तफरीही मकामात पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों ने अपनी फैमिली और दोस्तों के हमराह आर्ट गैलरी दमदमा का रुख कर लिया। शहरी अपने कीमती लम्हात को सेल्फी में महफूज करते दिखाई दिए। मजीद जानते हैं वन अब्बास से। जी बिल्कुल, अगर हम आपको आगाह करते चले, मुल्तान में शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है
اور آج جس طرح سے اتوار ہے تو اتوار کے دن کو جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور چھٹی کا دن منانے کے لیے جو ہے شہری کثیر تعداد میں فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ اس وقت تفریح مقامات پر پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ہم ملتان آرٹ گیلری دمدمہ پر موجود ہیں اور اس حوالے سے کچھ شہری بھی جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس صورتحال میں جو ہے کچھ شہری جو کہ دوستوں کے ہمراہ ہیں ان سے پہلے بات کریں گے اور پھر شہری جو فیملیز کے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ آج چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، آرٹ گیلری دمدمہ آگے کیسا لگا؟ آج بہت اچھا لگا۔ آج ہم ادھر آئے نا گڑھ نگر پر قلعہ کے پاس، بہت اچھا لگا، آج بہت اچھا لگا ہمیں۔ آج ہمارے چھٹی تھے اور تقریباً بھی 7 دن 6 دن ہم کام پر ہوتے ہیں اور اتوار کے دن ہمارا چھٹی ہوتا ہے، پھر ہمارا گڑھ نگر پہ آتا ہے یا کہ قلعہ پہ آتا ہے نا، ادھر قلعہ بہت اچھا لگتا ہے ہمارے کو، ہمیں ہے کوئٹہ سے۔ اور پورے 6 دن ہفتے میں محنت کرتے ہیں اور ایک دن ہوتا ہے چھٹی کا جو کہ مناتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ مزید بھی شہری جو موجود ہیں دوستوں کے ساتھ چھٹی کا دن منا کے کیسا لگتا ہے؟ بس اچھا لگتا ہے، بس ہمارا تو 6 دن میں ایک چھٹی ہوتا ہے، بس وہ ہم گھومتا ہے نا، بس ہم بھی نیا آیا ہے اس لیے بس ملتان گھوم کر کیسا لگ رہا ہے؟ ملتان بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، بس ملتان بھی اچھا جگہ ہے نا، کام وغیرہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ کراچی بھی گیا، کراچی ایسا نہیں لگا جیسا ملتان بہت اچھا لگا۔ ادھر جو گڑھ نگر ہے نا، خاص کر گڑھ نگر بہت اچھا لگا۔ شہر کا جو گھنٹہ گھر ہے وہ کافی زیادہ ایک تو قدیمی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تاریخی یہاں پر عمارتیں موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ ملتان آرٹ گیلری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ثقافت اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جتنے بھی یہاں پر پرانی چیزیں ہیں اس آرٹ گیلری میں محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے مزید شہری جو فیملیز کے ہمراہ ہیں موجود ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ اب دیکھا کہ آج چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے اور یہ دن جو ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز کے نام ہی کیا جاتا ہے، تو چھٹی کا دن کس طرح سے مناتے ہیں؟ اور آج جو ملتان آرٹ گیلری دمدمہ پر آپ آئے ہیں، یہاں پر کئی ثقافتی چیزیں بھی موجود ہیں، پرانی تصاویریں موجود ہیں، تو یہاں کیا آپ کو کیسا لگا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں شاہ رکن عالم دربار کے اوپر، تو اس میوزیم کو وزٹ کیا تو اتنا مزہ آیا کہ اگر کسی نے ملتان کی کوئی تاریخ دیکھنی ہے کہ یہ کس کس ادوار سے گزرا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، تو اس گیلری کے اندر آئیں تو آپ کو ساری چیزیں ایک ہی چھت کی تلے مل جائیں گی، آپ کی ساری ملتان کی ثقافت یہاں مل جائے گی۔ ہمیں دیکھ کے اتنا خوش ہوا تو ہم انتظامیہ کا ملتان جو ڈی سی او صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا۔ اب ہمارے ساتھ یہ فیملی آئی ہے اسپیشلی لاہور سے، تو یہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی کہ ملتان جو نا یہ تو بہت ایک تاریخی شہر ہے۔ لاہور کے جتنے بھی شہری ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے حوالے سے تو کافی زیادہ جو ہے اس حوالے سے سرگرم رہتے ہیں، تو ملتان شہر میں بھی آپ نے اور مزید کتنے مقامات کا جو ہے اس وقت اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملتان کے جتنے بھی شہر ہیں جیسے گھنٹہ گھر ہے اور مچھلی بازار ہے اور یہ جو ایک بازار ہے شاپنگ والا حرم گیٹ وغیرہ، یہ سارے ہم وزٹ کریں گے۔ یہ اسپیشلی آئے ہیں مختلف چیزیں اور ان کا جو سون حلوہ وہ مشہور ہے، وہ ان سب کو گفٹ بھی کریں گے اور لے کے بھی دیں گے، اور ہم اپنی فیملی جو ہمارے پیچھے خاندان ان کے لیے بھی لے کے جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں، بچے بھی یہاں پر گھومنے پھرنے آئے ہیں۔ اب دیکھا بچوں کے ساتھ جس طرح سے آج کا دن جو ہے اتوار کا دن اور اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں گھومنے، تو اس حوالے سے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ مزہ آیا، باقی یہ بتائیں گے آپ کو۔ تو کیسا آپ کو لگا یہاں پر آ کر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں فرسٹ ٹائم ملتان آئی ہوں لیکن بہت اچھا لگا۔ ملتان آ کر جو ہے کافی اچھا لگا اور اس حوالے سے جو ہے ملتان شہر کو گھوم پھر کر جو ہے کافی زیادہ تاریخی مقامات کا بھی یہاں پر جو ہے شہری یہاں پر دورہ کر رہے ہیں اور آج چھٹی کا اتوار کا دن جو ہے گھوم پھر کر کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ جی اور نباز چھٹی کے روز بھی اپنی ذمہ داریاں دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔